10th. हेलो हेलो स्टूडेंट्स, अभी लाइट चली गई थी। यूनिट नंबर यूनिट 15 ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस या एडजेसेंट साइड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा is equal to perpendicular अपॉन बेस। इनके इनवर्स cosec थीटा is equal to hypotenuse अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा सेकंड मुकम्मल लफ्ज़ है और लिख देते हैं sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अपॉन बेस। cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इनके इन्वर्स हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में ये सब बताए जाएंगे। ये हमारे पास राइट एंगल कोई ट्रायंगल्स है। इस ट्रायंगल्स में हमने एंगल ए पर अगर थीटा लगाया तो ए कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी, अपोजिट स्मॉल बी, एट सी इज ऑलवेज बी टेकन ऑन राइट एंगल। Side opposite theta is perpendicular. Side opposite angle theta is perpendicular. Side opposite 90 degree is hypotenuse. Okay, now this is hypotenuse.
This is perpendicular, and this one will be a base. Okay, if the triangles in a right angle triangle is like this one, the same triangle is to be drawn again. A, B, C, 90 degree. If this is theta, this will be hypotenuse. This is perpendicular. This one is a base. If we take theta on B, the side of the opposite theta is perpendicular. Okay. कैपिटल ए के अपोजिट आप स्मॉल ए लिखेंगे, कैपिटल बी के अपोजिट हम स्मॉल बी लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज को सी से रिप्रेजेंट करते हैं. These are the relations between two sides of any two sides of a right angle triangle. Now I am going to how to find the values of 45 degree of all these. To find now the question is to find the value of the trigonometrical ratios of an angle of measure 45 degree. 45 डिग्री के तमाम इन एंगल्स के ऊपर वैल्यूज क्या होगी. ओके, नो कंसीडर दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. A, B and C. At angle C, this is 90 degree, this is A, this is C, and this one is a B. Length of the BC is equal to A, AC is equal to B, and AB is equal to C. Let this is to be 45. The angle whose value is to be found out always be in a base. 45. Consider the right angle triangle angle ACB with right angle at
and angle A is equal to 45. We know in right angle triangle, in right angle triangle, acute angles are complementary. Are complementary. It means measurement A and B are acute angle. Here, angle A and angle B are acute angle. Now, then angle measurement angle A plus measurement angle B is equal to 90. Here, substituting value of A is 45 plus measurement angle B is equal to 90. Measurement angle B is equal to 90 minus 45. Measurement angle B also become angle B also become 45. It means angle A is equal to angle B. If two angles of triangles are equal, then side opposite will also be equal. If two angles of triangle are equal in measure, then side opposite them also be equal. Also be equal. Hence, A is equal to B. तो देखिए हम इस तरह हमारे वापस लेते हैं, देयरफॉर B इज इक्वल टू A के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी A को 45 है तो ये भी हमने B की वैल्यू भी 45 मालूम कर लिया। अब हम लिखेंगे 45 ये। ओके, तो ये यहाँ पे 45 ये भी आ जाएगा 45। ओके, दोनों साइडें इक्वल्स हैं, opposite angles are equal. Now applying Pythagoras theorem, A square plus B square is equal to C square.
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये है। अब आप हमने चेक कर लिया कि एज ए इज इक्वल टू क्या है, बी, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे बी स्क्वायर को ए, तो ये भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ 2a square is equal to c square. Here 2a square, taking root both sides, we get square. Now it will become root 2a is equal to c. अब हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, देखें c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया रूट 2a। अब तमाम साइड्स को हमने ए लेंथ में चेंज कर दिया। अब मैं वहाँ पे ट्रायंगल्स पे बनाकर, अब हमारे पास ट्रायंगल्स में लिखा बनाकर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखनी है, तो देखिएगा बेटे, ए बी एंड सी, दिस इज 90, दिस इज 45, दिस इज आल्सो भी 45, C is equal to root 2a, this is A and this is B and B is also BA। ओके, अब इसमें देखिए साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर हमारे पास A है और हाइपोटेन्यूज C है, इज इक्वल टू A, तो A ही हुआ आपके पास, और C की वैल्यू 2√A लिख दी। ए से कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आपकी वैल्यू आ गई। ये हमें ड्राइव करना होता है इन सब में से ये। इसी तरीके से कॉस कोई भी एंगल लिखा जाए तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बी ओवर सी, बी हमारा ए के इक्वल है, ये विल आल्सो बिकम ए ओवर रूट 2 ए ओवर सी, a over c is equal to a over root 2 c, रूट 2a, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√2a इसका भी आंसर आ जाएगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, tan थीटा मीन है 45, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास a है, बेस हमारे पास b है, एज b इज इक्वल टू a है, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने लिख दिया a इज इक्वल टू b। अब हमने इन्हीं के रेसिप्रोकल लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कोसेक 45, नॉट टू बी थीटा, हम कोसेक कोसेक 45 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर is equal to c over a is equal to रूट 2a अपॉन a, तो ये आ जाएगा रूट 2 के इक्वल। इसका आएगा सेक थीटा कॉस का, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है,
ये सॉरी ये पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है, बेस हमारा बी है, और सी जो है वो रूट टू ए, और ए बी जो है हमारे ए के इक्वल है, ये भी कैंसिल होकर इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, रूट टू। और लास्ट वन जो है इसका कॉट होता है, इसका अपोजिट कॉट 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर ए इज इक्वल टू 1। तो ये आपको 6 एलिमेंट्स की रेशियोज मालूम करनी होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और वो तमाम ऊपर का प्रोसेस देते हुए। ओके, ये जो लास्ट में आपका रिजल्ट आ रहा है ये आपको देना है, इसको कहते हैं टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री की रेशियो मालूम करने का यह तरीका है। यानी साइन 45 पे क्या आता है, 1/√2, कॉस 45 पे 1/√2, टेन 45 पे 1 होता है, कॉस का इन्वर्स अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू √2 होगी, उल्टा देंगे, 1/√2 को उल्टा दीजिएगा, कॉस का सेक होता है और वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस तरीके से हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मालूम कर दिया। ये रेशियोज हैं, इसको मैं दोबारा इस पर लिखने लगा हूँ। या बेटे 10 मिनट्स रह गए, 10 मिनट 5 मिनट्स हैं, तो 5 मिनट्स के बाद फिर ये बेटे हम लिखने लगे हैं यहाँ पे कॉस साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 आंसर आ गया। इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, इनवर्स 45 पे और √2 होगा, कॉस 45 पे हमने वैल्यू मालूम की, इसकी भी 1/√2 आई, सेम एंगल है इसलिए, और इसका इन्वर्स जो होता है सेक होता है, सेक 45, उसकी भी वैल्यू √2 आ गई। 10 45 इज इक्वल टू 1 होता है, 10 का इन्वर्स जो होता है कॉट होता है, कॉट 45 आल्सो भी 1। ओके, ये बेटे ये याद रखनी है। ये इन एक्सरसाइज के फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ को प्रूव करें, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल 1 प्रूव करें। तो अब हम क्या करेंगे, साइन की 45 पे वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस कॉस की भी 45 पे 1/√2 होती है, ये इसका भी स्क्वायर ले लिया। लेफ्ट साइड हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, 1/1 का स्क्वायर 1, √2 का 2 प्लस 1/2, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लिया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 2/2 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, जैसे प्रूव हो गया। तो इसी तरीके से अब आप इस ये लॉ बन गया हमारे पास, ये लॉ याद रखिएगा कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 आएगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये जो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताने के बाद ये फार्मूले ड्राइव करूँगा, तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन से मुकम्मल जो है एक चैप्टर एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो ये जब इस फार्मूला इन फार्मूला की हेल्प से बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और ये ख़ास तौर पे आपको इस वजह से याद रखना है कि जब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में जाएंगे, अभी भी इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो वहाँ पे फिजिक्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अप्लाई हों। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम भी याद हो गया होगा कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। In any right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. लैंग्वेज में हम इसको ये इस तरह कहते हैं, The Pythagoras theorem is square of hypotenuse is sum of square of other two sides. दूसरी दो साइडों के स्क्वायर को। तो यहाँ पे भी ये साइन का परपेंडिकुलर के लिए, कॉस बेस के लिए, तो साइन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसकी वैल्यू 1 बन जाती है। ओके, एक और ट्रिक पहले के बाद में आने वाले के लिए भी याद रखिएगा। ये मैं 60 और 30 की जब ट्रायंगल अपना रेशो निकालूंगा, तो उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, बात समझ कर रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। 90, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये अक्यूट एंगल इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल अक्यूट एंगल आर राइट कम्प्लीमेंट्री। तो इसका मतलब है मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। ये हमारे पास अगर 30 है तो मेजरमेंट एंगल बी क्या आएगा, इज इक्वल टू 90 में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, एंगल मेजरमेंट एंगल बी मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 30, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 60। तो याद रखिएगा कि इन दोनों का अक्यूट एंगल जो है, किसी भी राइट एंगल के अक्यूट एंगल जो है उनका सम 90 आना चाहिए। तो ये कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या बताना है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का डबल होती है, इसका मतलब ये हुआ ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो सी 2a के इक्वल हो गया। ये बात याद रखना कि 30 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, या थर्ड हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में hypotenuse is twice the angle of 30, opposite side of 30 डिग्री। 30 डिग्री के अपोजिट साइड का डबल होती है हमेशा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में measure of hypotenuse is always be equal to twice of the side opposite to 30 degree. In any right angle triangle, the measure of hypotenuse is twice the side opposite to 30 degree। 30 डिग्री के अपोजिट साइड की जो लेंथ है उसको डबल कर दें तो हाइपोटेन्यूज आता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपको 30 और 60 का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मालूम करना आ जाएगा। तो इस तरह
बोर्ड में तीनों में से एक मस्ट आता है। आप अगर 10 ईयर पेपर देखें तो उसमें कभी 45, कभी 30, कभी 60 के आया हुआ है। अक्सर ये आता है, अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनुअल के लिए मैंने इसलिए किया कि ताकि एनुअल से पहले पहले आपको सब कुछ आपको आता हो। तो ये स्टार्ट कर दें। तो मैंने आपको ये जो चूँकि टाइम बहुत कम है, वरना मैं आपको 30 और 60 की करवा दूँ। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अगर आप, और कोशिश करूँगा कि मैं क्लास में फिजिकल क्लास में कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जब भी है तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आपका होमवर्क जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होमवर्क, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। आपका इम्पॉर्टेंट आपका होमवर्क और इसी का ही टेस्ट लिया जाएगा। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। आपका सुन रहे हैं आप सब? मैं इसको क्लासरूम पे भी डाल दूंगा। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, चैप्टर नंबर 15। यही सब कुछ क्लासरूम पे डाल दिया जाएगा। तो आपको 10th क्लास के लिए आज मैंने 45 का, नेक्स्ट टाइम जो होगा वो देखेंगे। अगर आपकी चैप्टर फिज़िकल क्लास के अंदर, फिज़िकल क्लास में 2 पीरियड होंगे आपके, तो उनमें मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो उनमें ख़ासतौर पे अगर मेरे पास आप 9, 10 दोनों कंबाइन हुई तो दोनों का ही हो जाएगा, और अगर सेपरेट ज़्यादा बच्चे आए तो फिर 10th बी का ही सिर्फ होगा। क्योंकि फिज़िक्स के मेरे जो टॉपिक्स थे वो मैंने 10th बी में कंप्लीट कर दिए, और 10th जी में भी एक जो है वो उससे एक ही चैप्टर रहता है, वो भी कर दूंगा नेक्स्ट टाइम अभी कमी में। तो उसके भी टेस्ट मैं